श्री नगर में मुनक्किदा 3 रोजा G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। G20 के मंदुबीन ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और श्रीनगर के सयाहती मकामात के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हुए। श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन की सैर के दौरान रिवायती कश्मीरी कपड़ों में तस्वीरें ली। निशात गार्डन में इन मेहमानों ने अपने मोबाइल फोन से सेल्फियां ली और मुगल गार्डन की खूबसूरती, आबशारों और महकते फूलों से भरे रंग बिरंगे बाग के दिलफरेब नजारों को अपने कैमरों में कैद किया। मंदुबीन ने गोल्फ कोर्स में वक्त गुजारा और कश्मीर के बेमिसाल सुहाने मौसम में गोल्फ खेल का मजा भी लिया। इसके बाद मंदुबीन ने पोलो व्यू मार्केट का भी दौरा किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मंदुबीन ने डल झील, मुगल गार्डन, पोलो व्यू मार्केट और गोल्फ कोर्स में कश्मीर के मुनफरिद और सुहाने मौसम का मजा लेने के साथ साथ कश्मीर के अमन और खुशनुमा माहौल का भी मुशाहिदा किया। G20 मंदुबीन का कहना है कि G20 इजलास में कश्मीर की सयाहत, फिल्म, टूरिज्म, माशी और इक़्तिसादी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के हवाले से एक बेहतरीन जगह है। कश्मीर में सयाहत के अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में वसी इम्कानात मौजूद हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में ग्रीन टूरिज्म, इको स्पोर्ट्स के अलावा फिल्म साजी के लिए एक मुनफरिद और बेहतर गुंजाइश मौजूद है। कश्मीर में आज G20 मंदुबीन का दौरा मुकम्मल हो गया है और कल G20 मंदुबीन की रवानगी होगी। Ramcharan is yes, the superstar. It was my and honor. that was so well choreographed. Yes. Wonderful. Thank you. So is this your first trip to Kashmir? Yes. I've been in India for about 10 months now, and this is my first time visiting Jammu and Kashmir. First of all, RRR is not Bollywood, right? It's No, Tollywood. It's Tollywood, yeah. So I want to correct it. But we wanted to show that we Koreans and also staff at Korean Embassy have this huge love and respect for Indian culture. Jammu and Kashmir. Yes. I am in love with this nature, beautiful, clean, serene. And if I could, I would love to take some air, clean and fresh air, into my bag, back to Delhi. And one last. I mean, I don't know why Jammu and Kashmir is not yet well known around the world. So I hope many people can come visit here. What we saw outside of the meeting rooms, which is a garden, and it's lovely, beautiful. I think that the fact that you managed to do something, to keep something this beautiful and still keep the Chinar trees is amazing. And you come from the land of football, you come from the land of Messi. A lot of students here, they are inclined towards football right now. So are you discussed sports as well here? We haven't so far, but we are very appreciative of India's support. I think this street is new. The renovation of this street is new. Correct. And I think it makes it very easy and very comfortable for tourists to come and look at different shops. And I think what they've done to this place is wonderful because it really showcases the history of the old part of Srinagar. I remember the rain and of course the wonderful mountains and the meadows and the beautiful Dal Lake and the warmth of the Kashmiri people. So you think Kashmir is changing for good? I think Kashmir is already a beautiful place in the first place, you know. I don't know how it can get more beautiful. Oh, really good. I mean, we love to have more time just to stay a few days. So you should stay. Yes, why not? We know sightseeing a little bit more. Yeah. Because the program allows you to do what you have to do in terms of work. It's been really fruitful meeting here yesterday at the conference center. But yes, I mean, I have been witnessing that everyone is so anxious about what this area can offer for tourism, and I think the potential is really high. कश्मीर में पहली मर्तबा G20 समिट पर यूटी भर में तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जिला पुलवामा के शादी मर्ग जोन के तालिब इल्मों ने एक रैली निकाली। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने महकमे तालीम के इश्तराक से जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके से रैली निकाली। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर शादी मर्ग मंजूर अहमद ने कहा कि रैली के जरिए अवाम को G20 की जानकारी फराहम करना है। कश्मीर में मनाया गया है। G20 is a group of 19 countries and one European Union. एंड आज इसी सिलसिले में हमने वाक़ रैली निकाली है जिसमें हमारे जून के सारे स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि G20 इज़
ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ एंड 1 यूरोपियन यूनियन, इस साल ये हमारे कश्मीर में मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम एक वाकथन रैली निकालने जा रहे हैं जिसमें हमारे जोन के सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमारे कश्मीर में मनाया जा रहा है। A fit pulmonary system and other related aspects of the health. And in addition to that, the students get a chance to remain active physically throughout their studies, and by this they can concentrate more and more towards their studies and other aspects of the life. इन बच्चों का यही पैगाम दिया गया है इन बच्चों के ज़रिए कि जो G20 यहाँ पर हुई है, पहली बार वादी कश्मीर में हुई है, इससे यहाँ की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। इनका यही पैगाम है कि और जो बैरूनी ममालिक है उनमें एक बेहतरीन मैसेज जाएगी कश्मीर के हवाले से। बिलाल खान, न्यूज़ 18, द्रबगाम, पुलवामा। G20 इजलास के कामयाबी से इख्तिताम पजीर होने पर सरहदी जिला राजौरी के अवाम खुश है। राजौरी के लोगों ने कहा है कि इससे कश्मीर में सयाहत को फरोग मिलेगा और दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान के वक़ार में मजीद इजाफा होगा और कश्मीर के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था अब अवाम को पता चल गया है कि कश्मीर में अमन है। G20 की बात करें तो G20 का सक्सेसफुल जो इवेंट है कश्मीर में होने से भारत का सर जबरदस्त ऊंचा हुआ है और वर्ल्ड लेवल पर पोजीशन क्लियर हुई है कि कश्मीर जो है वो भारत के साथ है। कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। कश्मीर पूरी तरह कश्मीर के लोग जो हैं वो भारतीय हैं। तो उससे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ये देखकर टूरिस्ट आएगा। आज जो डल झील का हम टीवी पे जब देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त वहां का नजारा है, बहुत सारा टूरिस्ट इसको देखे और यहाँ अभी तो कश्मीर में बहुत टूरिस्ट आ रहा है और ज्यादा टूरिस्ट आएगा। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जो G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है और ये एक पैगाम गया है कि हमारा जम्मू कश्मीर बिल्कुल अमन पसंद है, पीसफुल है। पूरा विश्व भारत के साथ है और पूरे विश्व ने हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत की है और यहाँ मीटिंग की है। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा और एक शांति का पैगाम पूरे संसार में जाएगा।